Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yarihi uparatadhi tasmin adrakshit purusham parapuraha upalabhyopalabdhan pra vavande shirasvadujaha. When his intelligence and mind are fixed upon the form of the Lord, the Brahmana Ajamila once again saw before him the four celestial persons. He could understand that they were those he had seen previously, and thus he offered them his obeisances are bowing down before them. So Bhagavatam is full of success stories. How much encouraging is the situation of Ajamila? From a situation you cannot even imagine. He became so degraded. From born in a pious family, he did not take advantage of that. Yesterday we were discussing that. Shuchinam Srimatam Gehe Yoga Bharsashanjayate. Those people who do not complete spiritual life, what happens to them? They are born again in a family of a Brahmana or a rich person so that they can continue. And Ajamila had that opportunity. He was born in the family of a priest. He had all the opportunities and things were going well. Suddenly he became ensnared, trapped by Maya. Cheated by Maya. And whole life got waste. So much so he also indulged in various kind of sinful activities and whatnot. And here somehow, by good fortune, by the inspiration of the Lord, he named his last son Narayana. And that became the cause of his he was rescued. That is the cause of his getting an opportunity and what we call as second chance. He got another chance because of calling out the name of Narayana. And then after that he went to the banks of the Ganges at Haridwar. He left his home, everything, after being rescued by Vishnudutas. He got Sadhu Sangha. He was blessed. And he went to the banks of the Ganges at Haridwar and sincerely started chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Correct? Ajamila is chanting the mantra according to the age, according to the guidance. But he sincerely started practicing spiritual life. And what happened? Now he saw again the Vishnudas, same Vishnudas came now, who has protected him that time, now with the Vaikuntha Vimana. And it is described here, made of gold. And it can go to the spiritual world in less than a second. Today we see some stars, some planet. How many far away they are? 200 million light years, something like that. What he will do, when he will reach? It's not possible. They simply talk. If we have a vehicle, that's the problem with the scientists. Everything is perhaps might be if we have a vehicle traveling at the speed of light, we can reach that planet in this much time, something. We can reach the spiritual world in Vaikuntha Vimana. The soul is so speedy, Prabhupada. The soul is so fast. Just like mind is very fast. Now you're here, you can think about the college. It doesn't reach the college actually. If you have power, you can pick up something from there. Mind is very powerful. Okay? We don't have that power. A mind can travel very fast. Mind is subtle. Body is gross, it takes time to travel. Tuck. Mind, it can fly in a second. It's very fast. But mind can also not reach the spiritual world. Pantas koti sadavasar sampragamyo vayo rathavi manoso munipungavana. Then sopi yasyat prapada simne avachindu tatve govindamadi purusham. He says that if you travel by the speed of air or by the speed of light for millions of years, koti means 1 koti is 10 million. For millions of years you travel, still you will not be able to reach Krishna's lotus feet. It is so far. But if you travel by the speed of the soul, in a second, you enter the spiritual world. So this is the success stories which are recorded in Bhagavatam. The very idea is that we get inspired. That's the only purpose, that we can see
that from any position, just like हम पढ़ते थे ना competition success review, और IAS उसने देखो ऐसे IAS निकाल दिया, ये कि हम भी कोई इंस्पिरेशन में भी निकाल देगा एग्जाम. So we also get inspiration. Similarly, the whole Bhagavatam, many time people say, किसने देखा है? हाँ, have you, God is there, have you seen? Yes, see, it is there. Yes, see. And the process is also there for me also. If I also chant Hare Krishna mantra sincerely, I will also see Vaikuntha Vimana. The process is there in front of me. Correct? Testimonial is there to the people who practice the process. And there are books documenting the whole process, black and white. No perhaps, no might be, if nothing like this. Facts. But people are unfortunate. It's like if somebody cannot put faith on his father and mother, we can only call the child unfortunate. Correct? Prabhupada says. Somebody asked Prabhupada, if the mother is guiding something and the child cannot put faith, Prabhupada said it's very unfortunate. There is no other way for him to learn. Correct? बच्चा पैदा हो, माँ बाप बोल रहे हैं बेटा ये है, मैं नहीं सुनूंगा आपको ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो क्या बोलेंगे माँ बाप? ये बहुत दुर्भाग्यशाली है बेटा, इसको कौन सिखाएगा, कैसे सिखाएगा? करें, स्कूल में गए कुछ सिखा रहे हैं, नहीं मेरे को कोई विश्वास नहीं, क्या बोलेंगे स्कूल वाले? बहुत दुर्भाग्य है इसका. और उसके ऊपर बहुत मज़ा आया. प्रभुपाद जी को कोई ऐसा पूछा कि सपोज माँ झूठ बोल दे, वो माँ का पूछे मेरा पिताजी कौन है, और माँ झूठ बोल दे, तो उसका क्या होगा? प्रभु बोल दो तो महादुर्भाग्य उसका, फिर क्या कर सकता? कुछ नहीं हो सकता, कोई तरीका ही नहीं है. ठीक है, तो ऑथोरिटीज should tell the truth, and actually they tell the truth, therefore they are called authorities. And from authorities we come to know about the Supreme Lord. उसी से हम लोग भगवान के चरण पहुंच सकते हैं, अपने आप नहीं पहुंच सकते. We have to take the process through the scriptures. That is called शास्त्र चक्षुः. When you see through the scripture, then आपको सत्य दिखता है. अगर शास्त्र की तरह देखेंगे तो आपको पता चलता है कि आपका जीवन कितना भयभीत स्थिति में है. हम लोग तो ये प्लान बना रहे हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, किसी क्षण में ये शरीर बंद होने वाला है, और उसके बाद कुत्ते का जीवन या गधे का जीवन, घोड़े का जीवन, क्या जीवन आएगा हमारे पास? सोचने का ना. लोग सोचते नहीं है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है, लोग इसको नहीं सोचते. तो ये अजामिल के एग्जाम्पल से पता चलता है कि कितना आदमी को आध्यात्मिक उसमें सीरियस होना चाहिए. अजामिल को जब भगवान का नाम लिया, नामाभास, शुद्ध नाम नहीं लिया, उसी से उसके सारे कर्म कट गए, पाप कर्म कट गए. करेक्ट? लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए उसको शुद्ध नाम करना पड़ा. आप इसको डिफरेंस देखिए. व्हाट डू यू से? है ना? The Vishnudutas did not take him back because he was not chanted Shuddha Naam. He chanted Namabhas. नामाभास से आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा. वैकुंठ धाम जाने के लिए आपको शुद्ध नाम चाहिए. इसलिए वो अपना क्या कहते हैं दर्शन दे के निकल गए. तो उसको पता चला कि उसको तो बहुत बड़ा गलती कर रहा है, क्योंकि उसके सामने, विष्णुदूत के सामने यमदूत ने पूरा उसका जीवन का लेखा पिटा किया. ये किया उसने, ये किया, ये किया, ये किया. उसको सब पाप कर्म करे थे, लेकिन आदमी क्या है, कलयुग का आदमी बहुत घमंडी है, अपने कभी गलती मान नहीं सकता. मैंने कुछ नहीं किया. अरे इतना कुछ किया तुमने, यमदूत यार लिस्ट बना के रखें. नहीं मैंने कुछ नहीं. वो बताएंगे तुमको क्या तुम किया. तुमने लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते, उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते. पूरा लिस्ट है उनके पास. तो क्या करेंगे उसके बाद? तो नामाभास, जब हम नाम जप करते हैं उससे नाम तो चलो दिल तो शुद्ध हो जाता है, पाप भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवत प्रेम नहीं प्राप्त होता. भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए आपको शुद्ध नाम जप करना पड़ता है. शुद्ध नाम मतलब ध्यान से आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. अभी भी जो हम जप कर रहे हैं शुद्ध नाम नहीं है. शुद्ध नाम तो बहुत बड़ा चीज़ है. शुद्ध नाम से भगवान आकर्षित हो जाते हैं. जब बिल्लू मंगला ठाकुर बहुत बड़े आचार्य थे, जब वृंदावन गए थे, जब वो कृष्ण की महिमा करते थे, कृष्ण बैठ के उनके सामने आके सुनते थे. वो होता है शुद्ध नाम. शुद्ध करे. सिमिलरली व्हेन रूप गोस्वामी बोलते हैं मैं जब नाम जप करता हूँ, ये एक जीव से क्या जप होता है. करोड़ों जीव होनी चाहिए, करोड़ों कान होने चाहिए, तब आनंद आता है. एक जीव से क्या आनंद नहीं आ रहा ढंग का. करोड़ों कान चाहिए मेरे को. करें तो शुद्ध नाम जब करते हैं, कानों में भी ऐसा लगता है कि दिल में भी बहुत आनंद आता है. उसको बोलते हैं शुद्ध नाम. और शुद्ध नाम से भगवान आकर्षित होते हैं, और जो कोई उसको सुन लेता है उसका बहुत बड़ा भाग्य होता है, उसका पूरा दिल शुद्ध हो जाता है. जैसे एग्जाम्पल दिया ना, हरिदास ठाकुर बैठ कर शुद्ध नाम कर रहे थे, तो रात को प्रोस्टिट्यूट उनको डिस्टर्ब करने हैं, और रिजल्ट क्या हुआ? प्रोस्टिट्यूट भक्त बन गए. होता है शुद्ध नाम. 192 मालास किया उसने बैठ के उधर
अपना पूरा ज़िंदगी, वो होता है शुद्ध नाम, बहुत शक्तिशाली होता है। तभी तो प्रभुपाद का टेप पूरा दिन ऑन रखते हैं हम लोग, शुद्ध नाम। किसी और का 10 मिनट रखो, यार बंद करो, हो गया, बहुत हो गया। हर दिन एक दिन सुना, दूसरा अभी नहीं, किसी और का लगाओ। बट जो शुद्ध नाम होता है वो प्योर गोल्ड की तरह होता है, 24 कैरेट गोल्ड। उसका क्वालिटी वैसा होता है, सुनने में इतना आनंद लगता है। इस्कॉन का करीब 1000 सेंटर होगा, हर जगह 24 घंटे चलता है। कोई ये नहीं बोल रहा दूसरा लगाओ ट्यून, नहीं, शुद्ध नाम। शुद्ध नाम बहुत बड़ा चीज़ है। शुद्ध नाम मतलब भगवान की महिमा हो रही है पूर्ण रूप से, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई मिला, खाली भगवान की सेवा की इच्छा है। हमारा दिल अभी उतना पवित्र नहीं है, भगवान की सेवा की इच्छा है, लेकिन इंद्रिय भोग की सेवा की भी इच्छा है, तो उस दिल से शुद्ध नाम नहीं आ सकता। ये क्वीन कुंती ने बताया। जन्मय शौर्य श्रुता शीबी एदमान मदह पुमान न एव अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। ठीक है, अगर किसी को ये 4 चीज़ों से कोई संतोष मिल रहा है, क्या 4 चीज़ें हैं? जन्म से संतोष मिल रहा, कैसा जन्म मिला, अरे मेरे पिताजी आपको मालूम नहीं है, वो ये है, वो ये है, जन्म कह रहे, उससे संतोष अगर मिल रहा है तो नाम ढंग से नहीं जप करोगे, बिकॉज आपको कुछ और चीज़ से संतोष मिल रहा है। जब तक कंप्लीटली हम भगवान पे आधारित नहीं होंगे तो कैसे शुद्ध नाम करोगे, है ना? शुद्ध नाम करने के लिए पूर्ण रूप से भगवान पे आधारित होना चाहिए। भगवान ही हमको भला कर सकते हैं। किसी और चीज़ से मेरे को, जब तक मेरे को भगवान नहीं मिलेंगे, संतोष नहीं मिलेगा मेरे को। जैसे वृंदावन से कृष्ण जी चले गए थे तो पूरा वृंदावन के उन्होंने दिखाया भक्ति, करीब करीब मर गए थे। अरे घर में बच्चे उनके सब हैं, नहीं, कृष्ण नहीं है ना। ठीक है, अभी हमारे पास सब कुछ है और हम बड़े संतोष में हैं। अरे भगवान नहीं है, संतोष कैसे है तुम्हारा? चैतन्य महाप्रभु कभी कभी बोलते थे मैं तो भक्त नहीं हूँ, तो लोग बोले आप भक्त नहीं है, पूरे दिन रोते रहते हो कृष्ण के लिए, कैसे तुम भक्त नहीं है? नहीं, मैं जिंदा कैसे हूँ? अगर भगवान नहीं है मैं जिंदा कैसे हूँ? वो उसका प्रमाणित है कि मैं भक्त नहीं हूँ। ये होता है भक्त के लक्षण। तभी हम तो बहुत ही मिश्रित भक्त हैं। तो जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब अगर थोड़ा धन दौलत मिल जाए, 2-3 रुपये मिल जाए, बड़ा संतोष है। जैसे मजाक कर रहा था, कसाई खाने में थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रास पड़ जाए, गर्दन कटने वाली है, और कोई थोड़ा घास डालता है, गलती से थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, चलो ये गलती से आपके पुण्य के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा घास डाल दिया, और उसके बाद कैसे घोड़ा, वो क्या जो भी कसाई खाने में से गाय या बैल, तो सिमिलरली इस दुनिया में क्या है, एक दिन तो गर्दन कटनी है, कसाई खाना ही है, बड़ा कसाई खाना है बस। ये इस दुनिया को अगर आप अच्छी दृष्टि से देखो, कुछ नहीं है, बहुत भयंकर बड़ा कसाई खाना है, किसी भी दिन आपको बनवा के गला कट जाता है, कह रहे। लेकिन थोड़ा जेब में 2 रुपये ज़्यादा आ जाए, राजा की तरह घूमता है, ऐसे बेवकूफ़ है नहीं है बेवकूफ़। जन्म ऐश्वर्य, तो जन्म से क्या घमंड तुम्हारा है, गला तो कटना ही है, तुम इस रेस के हो। जैसे गाय की होते हैं ना, अलग अलग ब्रीड होते हैं, देसी ब्रीड है या तरह तरह की ब्रीड है, उससे क्या करोगे तुम? उसका घमंड करने क्या, गाय दिखा रही मैं देसी ब्रीड हूँ, अरे तो देसी ब्रीड है, तो अमेरिकन ब्रीड है, तो गर्दन तो कटनी है ही। ठीक है ना? तो सिमिलरली हम भी इस ऑल मृत्यु लोक में फंसे हुए हैं, गर्दन तो एक दिन कटनी है ही। कह रहे नहीं मेरा गोत्र है, वो तुम्हारा गोत्र का क्या करेंगे, गर्दन तो कटेगी। ऐश्वर्य, मेरे जेब में देखो 2 रुपये और है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं वाला। उधर ब्राइबी नहीं चलती, सोचते हैं हर जगह एडजस्ट हो जाता है, उधर एडजस्ट नहीं होता। बोलते ना जुगाड़, हर जगह जुगाड़ कर लेते हैं लोग, वहाँ यमदूत को नहीं जुगाड़ कर सकते, थोड़ा 2 रुपये रखो, वो नहीं लेने वाले तुम्हारे 2 रुपये। जन्म ऐश्वर्य श्रुता, हाँ मेरा ये डिग्री है, वो डिग्री है, ये बेमतलब के मूर्खता का डिग्री, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है आपको। शी मतलब इतना मत सुंदर हो, कह रहे अगर विष्णुता को देखोगे ना अपने को, फिर चेहरे में देखोगे ना, शीशे में लगेगा मैं यमदूत जैसे दिखोगे। अगर चारों तरफ आपके विष्णुदूत खड़े कर दिए, बीच में आप खड़े हो जाओ ना, आप अपना चेहरा देखोगे यमदूत जैसे दिखेगा। उनका क्या परफेक्ट, हो तो वैकुंठ वासी है ना, कह रहे। अभी हम लोग अंधों में काना राजा हैं, अभी असली हमने सुंदरता देखी नहीं है। जब विष्णुदूत को देखोगे, भगवान को देखोगे, फिर अपना चेहरा नहीं देख पाओगे शीशे में, करेक्ट। सेम हमारे लड़कों के लिए ये ले लो, और लड़कियों के लिए लक्ष्मी को देख लो एक बारी, उसके बाद अपना चेहरा भी नहीं देखना मेरे को, क्या एक गंदा चेहरा। तो जन्म शरीर श्रुता श्री, इन चीज़ों को जो घमंड लेके हम लोग बैठे हैं, इन चीज़ों से हम संतोष ले रहे हैं, हम भगवान का शुद्ध नाम नहीं ले सकते। तो शुद्ध नाम लेना इतना आसान नहीं होता। शुद्ध नाम मतलब खाली भगवान, जब तक भगवान मेरे को नहीं मिलेंगे मेरे को संतोष नहीं होगा। तो पूरी पुकार से होता है वो शुद्ध नाम। बच्चा जैसे अपनी माँ के लिए रोता है ना, उस तरह होता है
शुद्ध नाम। भगवान आपकी शरण चाहिए, आपके बिना मैं नहीं रह सकता, उसको बोलते हैं शुद्ध नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुनिया में कोई भी चीज़ मेरे को संतोष नहीं दे सकती, ये नाम ही मेरे को संतोष दे सकता है। नाम बिना कुछ ना ही 14 भुवना लोके, ये पूरे यूनिवर्स में कुछ नहीं है नाम के बिना। तब आपका शुद्ध नाम होता है। तब शुद्ध नाम अगर आप जप करेंगे तो डेफिनेटली भगवान उससे आकर्षित होते हैं, और उससे शुद्ध नाम से आपको भगवत प्रेम मिलता है। नामाभास या नाम अपराध से भगवत प्रेम नहीं मिलता, पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे अजामिल ने बोला था ना, नारायणा, लेकिन वो भगवान का तो सोच भी नहीं रहा था, अपने बच्चे का नाम ले रहा था, लेकिन जो भी किया भगवान का नाम लिया, इसलिए फायदा मिला। कभी कभी मजाक में भी लोग बोलते हैं ना, ये क्या हरे कृष्ण लोग देखे थे आज, कृष्ण का नाम ले लिया तो फायदा मिलता है उसको, दिल पवित्र होता है उसका। अब सोचो अगर इसमें दिल पवित्र हो तो ध्यान से क्यों नहीं करते? अगर क्या अजामिल की तरह यमदूत देखने क्या फिर उसके बाद करेंगे? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसा प्लान नहीं कर सकते आप। अजामिल ने तो गलती में पाप कर दिए थे, और जब उसने नाम लिया था ऐसा सोच के नहीं लिया था जरा विष्णुदूत भी दिखेंगे यमदूत भी दिखेंगे, वो तो उसका भाग्य था, कह रहे। तो उस पर डिपेंड नहीं करने का। जैसे कभी कभी, क्योंकि ये तो पर्सनल प्रोसेस है, भगवान के जो बड़े भक्त हैं जैसे प्रभुपाद जी और कृष्ण जी, हो सकता है आपके एक नाम में ही खुश हो जाए और आपको भगवत प्रेम दे जाए, लेकिन हमको जनरल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? ये बहुत ही पर्सनल प्रोसेस है। हो सकता है आप छोटी सी एक सेवा करी हो इस्कॉन में, छोटा सा सेवा, और हो सकता है उससे प्रभुपाद जी इतना खुश हो जाए आपका वैकुंठ का टिकट बन जाए, हो सकता है। लेकिन हमको जनरल प्रोसेस फॉलो करने का है। और वैसे भी एक टिकट भी हो तो मेहनत तब भी करोगे, सबको ले जाना है। प्रभुपाद जी ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखे थे कि मैं तो अकेला तड़प रहा हूँ, आई एम क्राइंग अलोन इन वाइल्डनेस, मैं अकेला रो रहा हूँ, अकेला। हाँ, आप मेरे को मदद कीजिए, मेरे को वैकुंठ कैसा जाना है मालूम है, लेकिन मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मैं सबको लेना चाहता हूँ। आप तो सोचेंगे मैं पागल हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। जैसे खाने के बाद आदमी को संतुष्टि हो जाता है, इसलिए भगवान का सेवा करने के बाद मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास है भगवान की सेवा में, करें। लेकिन मैं अकेला नहीं जाना चाहता, सबको ले जाना चाहता हूँ। आप तो देश के प्रेसिडेंट हैं, सबसे बड़ी पोस्ट है, आप मेरे को मदद करिए। देखिए, तो वो तो क्लियर था। अगर आपको ये भी गारंटी है आप भगवत धाम जा रहे हैं, तब भी आप कोशिश करेंगे कि सबको साथ ले जाए, कह रहे। आप भगवान की सेवा है ना, करना चाहेंगे। भगवान को उससे प्रिय कुछ भी नहीं है। भगवत गीता में कृष्ण जी ने लिखा है, न तो तस्माद मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतमः, कि इससे प्रिय मेरे को कोई भी नहीं है। कौन? किससे प्रिय? जो मेरे को कृष्ण का मैसेज दूसरे आदमी को दे। तो जितना तक हो सके हमको दूसरे आदमी को कृष्ण का मैसेज देना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा आध्यात्मिक प्रगति होगा। नॉर्मल मर्सी तो मिल रहा है, आपको स्पेशल मर्सी चाहिए ना। बोलते हैं जितनी कृपा गोपी को मिली थी उतनी कृपा तो शिव जी को भी नहीं मिली, नारद को भी नहीं मिली। कृष्ण जी खुद उनके साथ नाचे थे, है ना। तो सेम वे, अगर आपको ज़्यादा कृपा चाहिए तो खुद प्रैक्टिस करने के अलावा किसी और को भी कृष्ण भक्ति दीजिए, तब आपको स्पेशल कृपा मिलती है। समझ रहे हैं? हर आदमी को इंडिपेंडेंस है, भगवान उस इंडिपेंडेंस को इंटरफेयर नहीं करते हैं, करेक्ट। लेकिन आप उसको किसी को प्रोत्साहित कर सकते हो, यार क्या जा रहा है, तेरे को नुकसान क्या है इसमें, थोड़ा जप कर दे रहा, देखे तो कितना मन शांत होता है, कितना तेरा जिंदगी बदल जाएगा तेरे को, है ना। तो पता चलेगा भगवान है नहीं है। और आदमी जब शुरू कर दे, इतने भगवान खुश होते हैं, इतने। क्यों? मैं बता रहा था ना बहुत टाइम पहले, जब बेटा घर आ रहा है तो घर में कितनी खुशी होती है, कह रहे। और करोड़ों वर्ष बाद सपोज बेटा 20 साल नहीं था घर में और घर जा रहा है, कितने घर वाले खुश होते हैं। और करोड़ों जन्मों बाद आपने डिसाइड किया भगवान के वैकुंठ धाम जाएंगे, तो कितने भगवान खुश होंगे, करेक्ट। स्नेह तो है, ये तो स्नेह आप कंपेयर नहीं हो सकता। तो सिमिलरली अगर आप सीरियसली लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि भगवान का नाम जप करो, वैकुंठ धाम चलो, जितना भी इस दुनिया में रहोगे किसी भी तरह से खुश नहीं हो सकते। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर तुम वैकुंठ धाम जाओगे, करेक्ट। सब तरह की प्रॉब्लम है ना, चाय भी घूम गई एक प्रॉब्लम है, बीमार हो गया दूसरी प्रॉब्लम, 1000 तरह की दुनिया में प्रॉब्लम है,
लेकिन अगर भगवत धाम चले गए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं उधर, प्रॉब्लम ही एग्जिस्ट नहीं करती उधर, है ना। एक मूर्ख आदमी है जो भगवत धाम जाने का प्लान नहीं करता, मूर्ख है, महामूर्ख हो, उससे बड़ा मूर्ख क्या होगा। खाना पीना तो कुत्ते बिल्ली भी करते हो, अगले जन्म में वही करोगे। अगर तुमको ये बंद करना है साइकिल, करेक्ट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का साइकिल अगर आपको बंद करना है तो ये लूप होल, ये टेंजेंट जाता है ना सर्कल में, सब लोग सर्कल में ही घूम रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। एक एस्केप वेलोसिटी पकड़ के निकलना है इधर से। ये एस्केप वेलोसिटी पकड़ने के लिए आपको हरे कृष्ण मंत्र जप करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। बोलते हैं ना अर्थ से आपको बाहर निकालना तो एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है। तो सिमिलरली हरे कृष्ण मंत्र देगा एस्केप वेलोसिटी, सीधा वैकुंठ धाम में गिरोगे कृष्ण के चरण में सेवा करने के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, है। इसलिए भागवत में भी लिखा है, लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, बहुत जन्मों बाद ये एक आपको अवसर मिला है, इसको नहीं जाने का। तूर्णयोतेत अनुमृत्यु यावत, क्विकली ध्यान से फटाफट इसको प्रैक्टिस करो, मृत्यु आने वाले है किसी भी दिन। विषया सर्व खलु स्यात्, और ये इंद्रिय भोग तो कुत्ते बिल्ली को ही मरता है, इसके पीछे नहीं पागल हो जाओ मूर्ख। ये अवसर है, जाओ, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि इंद्रिय भोग में हम लोग फंसे हुए हैं, इसलिए सीरियस नहीं हो पाते। इसलिए भक्तों का संग चाहिए, करेक्ट। आप समझ रहे हैं। अब तो ये तो समझ आ गया, भगवत धाम जाना है, ये मेरा लास्ट जन्म होगा, लेकिन इंद्रिय भोग की जो लालसा है बांधी भी हमको, नहीं कर पा रहे, फिर भी इच्छा आती इंद्रिय भोग की, करें। भगवान की सेवा की इच्छा इतना है, इंद्रियों की भोग की इच्छा इतना है। अब पूरा मन शरीर विचलित हो रहा है इंद्रिय भोग की इच्छाओं से, इसलिए भक्तों के संग में रहना पड़ता है, क्योंकि भक्त लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके संग में अपने को थोड़ा उत्साह मिलता है, ठीक है। और पता भी नहीं चलता जब हो गया, पता भी नहीं चलता भागवत सुन लिया, पता भी नहीं चलता कीर्तन हो गया, पता भी नहीं चलता, लेकिन एक एक क्षण का फायदा मिल रहा है। जब अजामिल को एक बारी जोर के नारायण बोलने से फ़ायदा मिला, तो हमको इतनी बारी जब का फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा, उसका गारंटी है। वो तो नामाभास किया था, हम लोग तो शुद्ध नाम करने की कोशिश कर रहे हैं, करें। बोलते हैं जो आचार्य के ऑर्डर में जप करते हो वो शुद्ध नाम होता है। कैसे, ये मैंने समझाया पहले भी। अगर आप प्रभुपाद जी के ऑर्डर में, प्रभुपाद जी बोले कृष्ण को ये दे दो, आप जाके दे दो, कृष्ण जी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्यों? आचार्य ने बोला था। तो सिमिलरली आप बोले मैं नाम जप कर रहा हूँ, क्यों? प्रभुपाद जी बोले थे, शुद्ध नाम बन जाता है, कृष्ण उसको स्वीकार कर लेते हैं आपके नाम को, जबकि उसकी क्वालिटी नहीं है अभी, तब भी स्वीकार कर लेते हैं, क्यों? आप उसके भक्त के आदेश के अनुसार जप कर रहे हो। तो हमेशा आचार्य को उनकी लिखित किताबों को पढ़ना चाहिए, और उनकी जो ज्ञान दिया उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, पूरा जीवन शुद्ध हो जाता है। भगवान बहुत खुश होते हैं जब हम उनके भक्तों की शरण लेते हैं, बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने वैसा ही बनाया है सृष्टि। वैकुंठ धाम में भी आप डायरेक्टली भगवान के सेवक नहीं है, उनके भक्तों के सेवक है। तो ये दुनिया वैसी ही बनी है। जब हम भक्तों की शेल्टर में रहते हैं तो भगवान को बहुत खुशी होती है, करेक्ट। बिकॉज वहाँ वो अकेले नहीं है, वहाँ तो करोड़ों भक्त भी है ना, तो उधर तो वातावरण ही यही है, दास दासानु दास दासानु दास दासानु दासा, सेवक का सेवक का सेवक का सेवक का सेवक, वही वातावरण है। तो ये वातावरण को ट्रेन करने के लिए कृष्ण जी अपने आप को खुद नहीं देते, वो अपने भक्तों के थ्रू ही अपने को देते हैं। भगवत भक्ति, भगवान का ज्ञान, भगवान का नाम डायरेक्टली भगवान से कोई नहीं लेता, भक्तों के हाथ से ही लेता है, करेक्ट, और आभारित रहता है। और वो ही एक वातावरण है, वैकुंठ का वातावरण, बहुत सुंदर वातावरण है। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।